let A belongs to a ring R, and R is a ring with identity. So let me write ring with identity. And this element is nilpotent element, that is a to the power n is equal to 0 for some n in n. Okay. Then the problem is prove that 1 minus a has multiplicative inverse. What is 1 here? 1 is the identity, that is multiplicative identity. It is a ring with identity. Identity को हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं, और एक ऐसा एलिमेंट है, एक निलपोटेंट एलिमेंट है. तो प्रॉब्लम क्या है? 1 माइनस ए एक यूनिट एलिमेंट होगा, ये दिखाना है. 1 माइनस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब 1 माइनस ए इज यूनिट एलिमेंट. सो solution is very easy. Consider an element y defined as 1 plus a square plus a. देखिए a to the power n पे 0 हो रहा है, तो हम a को a to the power n minus 1 तक ले जा रहे हैं. y ये एलिमेंट ले लिया हमने. Now if we multiply y with 1 minus a, then can you tell me what will we get? चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं. रिंग के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. 1 माइनस ए का क्या मतलब है? 1 माइनस ए का मतलब है 1 प्लस माइनस ए, एंड माइनस ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द रिंग, एंड प्लस को हम लोग डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये डॉट है और यहाँ पे 1 प्लस माइनस ए लिखा हुआ है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से. डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसकी डिफिनीशन में ही है रिंग की. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए 1 से पहले सबको मल्टीप्लाई करते हैं. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस a to the power n minus 1, and now माइनस a से हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो माइनस a into 1, that is minus a, then minus a into a, that is minus a square, minus a into a to the power n minus 2 से करेंगे तो minus a to the power n minus 1 आएगा, and minus a to the power n आएगा. ठीक है. So what will be the total? So this term will cancel out, and as you know, a to the power n is what? A to the power n is 0, so we can put 0 in place of a to the power n. So finally you will get 1, and 1 is the identity element. So what does it mean? So this into y is equal to 1. So this implies 1 minus a into y is equal to 1. Similarly हम दिखा सकते हैं, similarly we can show that y times 1 minus a is equal to 1. So what does it mean? It means that this implies 1 minus a has multiplicative inverse, and this inverse is equal to y is equal to 1 plus a square plus a to the power n minus 1. Okay, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया. Is it okay? Are you getting my point? Do you have any problem at this point? Come to next problem. Show that zero is the only
nilpotent element in an integral domain. यानी अगर हमको इंटीग्रल डोमेन के अंदर nilpotent एलिमेंट देखना है तो हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो है सिर्फ जीरो। जीरो का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, उसी को जीरो बोलते हैं। ठीक है, सपोज R इज एन इंटीग्रल डोमेन, सपोज R इज एन इंटीग्रल डोमेन, ID मीन्स इंटीग्रल डोमेन, और एक एलिमेंट ले लेते हैं इसमें nilpotent एलिमेंट, एंड A in R is nilpotent element. nilpotent element का मतलब क्या है? That is there exists n in M such that a to the power n is equal to 0. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? Now a to the power n को हम लोग लिख सकते हैं a to the power n minus 1 into a। एक काम हम लोग और कर लें, अगर n को स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर ले लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो लेट अस राइट दिस थिंग, क्योंकि n कोई भी नंबर हो सकता है तो उसमें सबसे छोटा ऐसा नंबर ले लेते हैं। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस। सो देयर एक्सिस्ट n in n such that a to the power n is equal to 0 and n is smallest such number, ऐसा सबसे छोटा नंबर है। then what will happen is that then a to the power n is equal to a to the power n minus 1 into a लिख सकते हैं, and this is 0. now remember we are in integral domain and a to the power n minus 1 is not equal to 0 because n is the smallest number for which a to the power n is 0. तो a to the power n minus 1 तो 0 नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दिस इम्प्लाइज, और R क्या है? R इज इंटीग्रल डोमेन। तो अगर R इंटीग्रल डोमेन है और दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और ये 0 नहीं है, इसका मतलब A 0 है। एंड दिस प्रूव्स दैट if A is nilpotent element, then A has to be 0. समझ में आ रहा है? सर हाँ सर, a to the power n minus 1 क्यों नहीं हो सकता 0? हाँ, क्योंकि देखो A क्या है? nilpotent एलिमेंट है। nilpotent एलिमेंट की डिफिनीशन है कि कोई इंटीजर ऐसा मिले कि उसकी पावर चढ़ाने पर, ए के ऊपर उस पावर को रखने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा सबसे छोटा भी तो कोई इंटीजर होगा जिसको पावर रखने पे 0 आएगा। ऐसा जैसे कि मान लो, हाँ, तो हमने सबसे छोटी पावर लिया जिसके लिए 0 आ रहा है, तो a to the power n minus 1 हमारी डिफिनीशन के हिसाब से 0 नहीं आना चाहिए। तो a to the power n minus 1 अगर 0 नहीं है तो a 0 हो गया, and that is what we want to prove. ठीक, एक और प्रॉब्लम ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट nilpotent elements of a commutative ring form a subring. कॉम्यूटेटिव रिंग की जो nilpotent एलिमेंट्स होते हैं वो एक सबरिंग बनाते हैं। तो आपके पास सबरिंग के लिए टेस्ट है, उसको अप्लाई करिए। सपोज कर लीजिए कि यार एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और एक सेट ले लीजिए जिसमें सेट ऑफ ऑल nilpotent एलिमेंट्स आ रहे हैं, और फिर आप उसको सबरिंग दिखा दीजिए। चलिए हम इसके सेट और सबसेट्स लिख देते हैं। सॉल्यूशन, लेट
R be a commutative ring, take S to be the set of elements of R such that a to the power n is equal to 0 for some n in n। इसका मतलब क्या हो गया? S क्या है? सेट ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स। S क्या है? सेट ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स है। अब इसके ऊपर आप सब रिंग टेस्ट लगाइए कि S नॉन एम्प्टी है, A और B अगर S में है तो A माइनस बी S में जाएगा, और अगर A और B S में है तो A इंटू बी भी S में जाएगा। इसको टेस्ट लगाइए और आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इज अ सब रिंग, S इज अ सब रिंग, है ना। तो क्या प्रूफ करना है आपको? आपको दिखाना है कि S इज अ सब रिंग। इसको आपको सब रिंग दिखाना है, सब रिंग, ये आपका गोल। तो ट्राई करिएगा, आई होप इट इज नॉट ए हार्ड प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट only idempotent elements of an integral domain, ID means integral domain, are 0 and 1. Solution. हमको दिखाना है कि अगर हमारे पास कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो सपोज A is an idempotent element in an integral domain R। इंटीग्रल डोमेन का नाम हमने दे दिया R। ए एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है एक इंटीग्रल डोमेन R में, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का क्या मतलब होता है? देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A बाय डेफिनेशन। दिस इंप्लाइज A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट डज इट इंप्लाइज? A वी कैन टेक कॉमन, इसको लिख सकते हैं हम A इंटू 1 लिख सकते हैं, A कॉमन ले लेंगे, A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर इन इंटीग्रल डोमेन एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन A is equal to 0 or A minus 1 is equal to 0, and this simply implies that A is equal to 0 or A is equal to 1, and that is what we want to prove, that if we have an idempotent element then that idempotent element will either be 0 or 1। समझ में आ रहा है आपको? Is it okay? Problem. Next problem. Find all units, zero divisors, idempotents and nilpotent elements in Z3 डायरेक्शन Z6, ठीक है। हमको हमारे पास रिंग क्या है? Z3 डायरेक्शन Z6। इस रिंग के अंदर यूनिट्स निकालने हैं, जीरो डिवाइजर्स क्या होंगे ये निकालने हैं, आइडेम्पोटेंट क्या होंगे वो निकालना है, और निलपोटेंट एलिमेंट बताने हैं। चलिए हम आपको हिंट करते हैं सोल्यूशन के लिए। पूरा सोल्यूशन आप लोग अपने से करिएगा। सबसे पहले देखो ये रिंग कैसी दिखेगी, कितने एलिमेंट होंगे इस रिंग में? कैन यू टेल मी? Z3 में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, Z6 में 6 एलिमेंट हैं।
तो Z3 डायरेक्ट सम Z6 क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Z3 और Z6 होता है। सेट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो कितने एलिमेंट आएंगे Z3 और Z6 के कार्टेशियन प्रोडक्ट में? यस प्लीज। देखिए, अगर आपके पास एक सेट A है और दूसरा सेट B है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो कैसे एलिमेंट दिखते हैं? A, B टाइप के एलिमेंट्स दिखते हैं, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? तो अगर A के अंदर 3 एलिमेंट हैं और B के अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? 18। A B में कितने एलिमेंट होते हैं? A क्रॉस B में 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स होंगे। यस, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और B में आपके 6 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 18। यस, यू आर राइट। और वो एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे? Z3 के एलिमेंट आप रिकॉल कीजिए। Z3 के जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो होते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम बार हटा दे रहे हैं, 0 1 2 लिख रहे हैं, ठीक। और Z6 के एलिमेंट जो हैं वो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग 0 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, ठीक। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इस 0 के साथ ये 0 और सारे एलिमेंट, तो चलिए लिख के देखते हैं। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ठीक है। और एलिमेंट क्या होंगे? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। और क्या होगा? 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5, ठीक है। 18 एलिमेंट हो गए। सो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Z3 क्रॉस Z6। अब हमको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट निलपोटेंट है, कौन सा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है, कौन सा एलिमेंट यूनिट है। तो क्या इसको ऐसे एक्सरसाइज छोड़ दें आपके लिए, और यू नीड सम हेल्प? अब इसमें एक चीज और आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है, एडिशन कैसे डिफाइंड है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने, सपोज करिए 2 2 ले लिया या 2 3 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है? मल्टीप्लिकेशन आप क्या करिएगा, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। सो यू हैव 2 into 2 in first coordinate and 1 into 3 in second coordinate, ठीक है। सो 2 into 2 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो Z3 के हिसाब से होगा, और 1 into 3 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो Z6 के हिसाब से होगा। ये चीज ध्यान रखना है। सो 2 into 2 is 4, 3 से उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, सो दिस इज 1, एंड 1 into 3 is 3, so this is 1 3. Do you understand this thing? Yes sir. ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 0 2 ले रहे हैं, 0 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0 4 आएगा। 2 into 2 किए तो 4 हो गया। 0 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो एक बार 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 4 into 0 2 क्या हो गया? 0 8 हो गया। 0 8 का क्या मतलब है? 8 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 0 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 2 0 के साथ ये काम करेंगे, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? तब आएगा 4 0,
और 4 0 का मतलब है यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे यानी 1 0। तो ये इस तरह से चलेगा और क्यूब करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. In this way you can calculate the powers and now you are to search कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इन्वर्टेबल हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो निलपोटेंट हैं, यानी उनकी पावर करते जाएं तो 0 आ जाए। ठीक है, निलपोटेंट क्या होता है, उनकी पावर करते जाएं तो 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने ये एलिमेंट लिया, उसकी पावर करोगे तो बार बार यही एलिमेंट आएगा ना। 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1 इंटू 0 1, तो 0 1 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, ये एलिमेंट आइडेम्पोटेंट हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया। अच्छा, इस रिंग का 0 कौन है, इस रिंग का 0 ये एलिमेंट है। और इस रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 जिसको बोलते हैं वो ये एलिमेंट, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आइडेम्पोटेंट हो गया। इसी तरह से आपको सब एलिमेंट के लिए चेक करना है। अब देखिए ये 02 और 03 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट 0 रह जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, ये दोनों एलिमेंट हो गए 0 डिवाइजर। इसी तरह से आपको सब एलिमेंट के लिए चेक करना है और कौन से एलिमेंट 0 डिवाइजर है, क्या क्या और हो सकता है, एंड एवरीथिंग यू विल चेक। ठीक है ना, कौन से यूनिट एलिमेंट है वो भी आपको देखना है। So I hope you can do it. So please try to solve it, and if you feel any problem then you may ask me. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। Let R be an integral domain. Prove that A into B is equal to 1 implies B into A is equal to 1. Solution. अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है और उस इंटीग्रल डोमेन में A इंटू बी 1 आ रहा है तो B इंटू ए भी 1 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है A इंटू बी 1 आ रहा है तो B इंटू ए भी 1 आएगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर B इंटू ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि ए बी 1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इंटू ए बी तो 1 है हमारे पास, इसका मतलब हो गया B इंटू 1, B इंटू 1 B आएगा, 1 is the multiplicative identity and that can be written as 1 into B। ठीक, चलिए एसोसिएटिविटी से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं B डॉट A into B is equal to 1 into B. Now you can write it as B dot A dot B minus 1 into B is equal to 0. And this can be written as B dot A minus 1 into B is equal to 0. And this implies now the role of integral domain comes. Either BA minus 1 is equal to 0 or B is equal to 0. ठीक है, if B is equal to 0 then A into B is equal to A into 0 is equal to 0. This is a contradiction क्योंकि A into B तो 1 आ रहा है और 1 और 0 कभी बराबर नहीं होंगे रिंग के अंदर।
then A into B is equal to 0. This is a contradiction. So B is not equal to 0. But because we are in integral domain, thus B minus A B into A minus 1 is equal to 0. So BA is equal to 1, and that is what we want to prove. So this is proof. ठीक है, तो AB अगर 0 आ रहा है तो BA भी 0 आएगा. इस क्वेश्चन को करने के बाद एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या कोई ऐसी रिंग भी है जो जिसके लिए अगर AB 1 आ रहा है तो BA 1 ना आए. ठीक है, तो इसको भी हम आपके लिए अभी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं. आप सोचिएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा. फाइंड AB in a ring R such that A into B is equal to 1, but B into A is not equal to 1. A into B तो 1 आ रहा है, लेकिन B into A 1 नहीं आ रहा है. ऐसी कौन सी रिंग हो सकती है? किस रिंग में ऐसा होगा? तो एक बात तो क्लियर ऊपर से, ये रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में भी हम लोग ने देखा कि अगर ए बी 1 आता है तो बी ए भी 1 आता है. सो ऐसी कोई रिंग होगी तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी. तो आप सोचिएगा कौन सी ऐसी रिंग हो सकती है जहां पे ऐसा होगा. ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. Suppose R is an integral domain in which (20 into 1 is equal to 0 and 12 into 1 is equal to 0. So the question is, what is characteristic of R? What is characteristic of R? Solution. देखिए हम लोग इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या लेके चले हैं. इंटीग्रल डोमेन जो है उसके लिए जो हमने रिंग ली है, रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी लिया है. ठीक है, रिंग कैसे लिया है? कॉम्यूटेटिव लिया है, एंड उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग लेके चल रहे हैं ऑलरेडी इंटीग्रल डोमेन के लिए. अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन रिकॉल करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के हिसाब से 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है अगर रिंग के अंदर है, तो इस 1 का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब एडिटिव ऑर्डर होता है, अगर वो फाइनाइट आ रहा है तो वही उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज देखने से मिल रहा है कि 1 को अगर हम 20 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. इसका मतलब जो 1 का एडिटिव ऑर्डर है वो फाइनाइट है. ठीक है, सिंस 20 into 1 is equal to 0, so order of 1 will actually divide 20. क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है कि उतनी बार अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए. तो अगर 20 बार ऐड करने पर 0 आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा. अच्छा, इसी तरह से सिंस 12 into 1 is equal to 0, so ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा वो 12 को डिवाइड करेगा. ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ 1 ही कैरेक्टरिस्टिक है. ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा वही कैरेक्टरिस्टिक आएगा. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस implies order of 1 is finite and so characteristic of R is equal to order of 1. Now order of 1 divides 20 and order of 1 divides 12. Thus order of 1 divides
अगर कोई नंबर 20 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है तो क्या कह सकते हैं उस नंबर के बारे में? दैट नंबर विल डिवाइड द जीसीडी ऑफ 20 एंड 12। जीसीडी क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और ये नंबर ऑर्डर ऑफ 1 जो एक फैक्टर है, तो ये 20 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइड्स व्हाट? क्या है जीसीडी इसका? जल्दी से 4 है। लेकिन हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक प्राइम नंबर होता है, बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन is a prime number. So what is characteristic of R? That is order of 1 and that will be 2, क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम नंबर होता है? वो है 2. So characteristic will be 2. समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से। Is it okay?